Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Shri Prabhupada Lilamrut, but I know that you never underwent such transcendental teaching except some severe penances which you invented for your purpose, as you have invented so many things in the course of experimenting with the relative truths. You might have easily avoided them if you had approached the Guru as above mentioned. Uh, Recognizing Mahatma Gandhi's godly qualities and austerities, Abhay requested him to employ his moral elevation for surrendering to the absolute truth. Abhay urged him to get out of politics immediately. But your sincere efforts to attain some godly qualities by austerities, etc., surely have raised you to some higher platform which you can better utilize for the purpose of absolute truth. If you, however, remain remain satisfied with such temporary position only and do not try to know the absolute truth, then surely you are to fall down from the artificially exalted position under the laws of nature. But if you want really to approach the absolute truth and want to do some real good to the people in general over the world, which shall include your idea of unity, peace, and non-violence, then you must give up the rotten politics immediately and rise up for the preaching work of the philosophy and religion of Bhagavad Gita without offering unnecessary and dogmatic interpretation of on them. I had occasionally discussed this subject in my paper Back to Godhead, and a leaf from this same is enclosed herewith for your reference. I would truly request you. I would only request you to retire from the politics at least for a month only, and let us have a discussion on Bhagavad Gita. I am sure thereby that you shall get a new light from the result of such discussions, not only for your benefit but for the benefit of the world at large. As I know that you are sincere, honest, and a moralist. Awaiting your early reply with interest. Yours sincerely, Abhay Charan Das. There was no reply. A month later, Gandhi announced that he would fast until death unless India made a payment of 550 million rupees to Pakistan, a previous condition of the partition agreement. At first, Hindu refugees from Pakistan demonstrated outside Gandhi's darkened room, chanting, "Let Gandhi die." But as he fasted each day closer to death, he accused the heartfelt concern he aroused the heartfelt concern of the nation, and the government leaders repaid the money to Pakistan. The great crowds approaching him chanting "Let Gandhi die." Meanwhile, let Gandhi live. Okay. Meanwhile, Hindu-Muslim violence continued. On January 30, the day after he had drafted a new constitution for the Congress party, Gandhi took his evening meal, worked at his spinning wheel, then walked towards the evening prayer meeting and was shot 3 times in the chest. He died crying out the name of God, Hey Ram. Abhay's letter of the previous month suddenly read like a prophecy, but I had not been uh, read by the person for whom I had been it had been intended. हरे कृष्णा प्रभु जी तो मतलब श्रील प्रभुपाद जी जो गांधी जी को लेटर लिख रहे थे उसके बारे में उन्होंने बताया था कि अ, आप मतलब वो बोल रहे थे कि आपने एक्चुअली कोई ऐसी दिव्य शिक्षा कभी ली नहीं थी जो जबकि आप खुद काफी तप और ऑस्टेरिटीज आप करते हो तप तपस्या आप सब करते हो फिर भी
लेकिन जो दिव्य शिक्षा है भगवत गीता जैसा, वो आपने कभी पढ़ी नहीं है या उसके बारे में आपने कभी जानकारी ली नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी जी को मतलब प्रभुपाद जी मानते थे, कहते थे कि उनके पास भी कुछ अच्छी ये है, कुछ अच्छे गुण हैं, उन्होंने भी तप किए हुए हैं। लेकिन अब अभय जी मतलब प्रभुपाद जी उनको हर बार बोलते थे कि आप अपना जो मॉरल नॉलेज है उसको यूज करके जो परम सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनको जान लो करके। और अभय जी उनको बोलते थे कि पॉलिटिक्स अब तुरंत छोड़ दो। लेकिन मतलब उन्होंने वो कहा है कि वो जब गांधी जी को उन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने बोला कि आपके जो सिंसियर एफर्ट जो है आपके कि पूरे दुनिया में शांति और ये सब प्रस्तापित करनी है, तो मतलब उन्होंने उन्होंने कहा है कि आपने तो जो मतलब जो तपस्या करके आपने खुद को तो एक अच्छे स्तर पे खड़ा करके रखा हुआ है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप लेके जाकर चुके हैं। लेकिन ये सब जो चीज है, जो खुद को आप जो तपस्या कर रहे हो, वो भगवान को सेंटर में रख के करना चाहिए, श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रुथ के लिए करना चाहिए। लेकिन अगर आप वो नहीं मतलब आप अगर ये जो टेम्पररी जो भौतिक पोजीशन है, भौतिक सुख है और भौतिक लेवल है, उस पे अगर आप सेटिस्फाई हो उसी पे, तो आपको मतलब तो मतलब और आपको कृष्ण को अगर जानकारी कृष्ण की जानकारी करने में अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आगे चल के डेफिनेटली गिर जाओगे इस पोजीशन से। लेकिन वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलते कि मुझे सच्ची में लगता है कि आप इस तरीके से मतलब वो एग्जॉल्टेड पोजीशन, जो अच्छे पोजीशन से आप गिर ना जाओ। मैं खुद आपको सोचता हूँ, मतलब आपके लिए ये करता हूँ कि आप प्लीज श्री कृष्ण के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में जानकारी लेना चालू करो। और वो अगर आप सच्ची में चाहते हो कि पूरी दुनिया में यूनिटी, पीस, खुशी, सुख अगर बरकरार रहे, तो आपको ये सब चीज खुद जानकारी लेनी पड़ेगी। और आपको सबसे पहले मतलब ये जो पॉलिटिक्स है उसको आपको तुरंत तुरंत छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने रॉटन पॉलिटिक्स मतलब ये ना गंदा गंदा राजनीति है, उन्होंने बोला गंदी गंदी राजनीति, इसको आप छोड़ दो करके। और मेरे आप 1 महीना बोले, ज्यादा नहीं तो अगर 1 महीना छोड़ के मेरे साथ 1 महीना के लिए भगवत गीता पे डिस्कशन करने के लिए आ जाओ। अ, और बोलते कि वो डिस्कशन भी ऐसा करना कि खुद का मेंटल स्पेकुलेशन, डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन, मतलब गलत कुछ भी कुत्ते की तरह समझ लेके मत आ जाइए। जो है समझ वो प्रॉपर मन खाली करके मेरे साथ डिस्कशन के लिए आ जाइए। मन में एक बोलते हैं ना प्री कंसीव्ड नोशंस, उसको निकाल के आप आ जाइए। तो बोलते ये सब चीज मैंने अपने बैक टू गॉडेड मैगजीन में लिखा ही है, और मैं आपको वापिस एक उसके लिए अप्रोच मतलब वो जो एक लीफ है मैं अटैच करके आपको भेजता हूँ। तो बोलते कि आप मतलब वापिस वो बता रहे कि 1 महीना आप रिटायर हो जाओ और मेरे साथ भगवत गीता के डिस्कशन में आ जाओ। और आपको अब आने के बाद आपको सही क्या और गलत क्या है इसके बारे में पूरी शिक्षा अच्छी तरह से मिल जाएगी। और ये सब चीज सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं करेगी, मतलब इसका फायदा सिर्फ आपको ही नहीं होगा, लेकिन पूरे दुनिया जो आपको मानती है, पूरे दुनिया को इसका फायदा होगा। लेकिन मतलब हुआ अलग ही था, क्योंकि मतलब प्रभुपाद जी को उसका कोई लेटर का रिप्लाई आया नहीं। और महात्मा गांधी जो थे वही पॉलिटिक्स में घुसे रहे। उन्होंने फिर एक अपना जो ये चालू किया, उपवास चालू किया, फास्ट अनटू डेथ करके का। और अपना पाकिस्तान को 550 मतलब 55 करोड़ रुपए देने के लिए उन्होंने ये चालू की, सत्याग्रह चालू किया। और मतलब लोग तो जो गुस्से में थे उनको वो बोल रहे थे कि गांधी को मरने दो करके। वो गांधी जी के इसके सामने ये कर रहे थे, मतलब स्लोगन लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि गांधी को मरने दो। लेकिन गांधी के प्रति जो देश का जो प्यार था वो फिर और गहरा हो गया। जैसे जैसे एक एक दिन निकलते जा रहा था, देश का प्यार बढ़ते जा रहा था, मतलब देश का जो गांधी के प्रति प्यार था वो बढ़ गया। और फिर उन्होंने वो पैसे देने के लिए वो राजी हो गए। और फिर जो लोग गांधी जा मरने दो करके जो ये जो नारा लगा रहे थे, वो गांधी जीने दो करके नारा लगाने लग गए। और फिर वो प्रभुपद जी बता रहे कि जनवरी 30 के 30th के दिन
गांधी जी ने अपने पूरे दिन क्रम जो किया था, दिन क्रम पूरा फॉलो किया। शाम को उन्होंने अपना शाम का खाना भी लिया और फिर वो अपने जब शाम के प्रार्थना के जगह जा रहे थे, तब उनको मार दिया गया 3 टाइम्स। तो प्रभु जी पाक जी बोल रहे हैं कि वो मरते समय उन्होंने श्री राम, हे राम का मतलब नाम लिया था। तो मतलब प्रभु वो यहाँ पे ऐसा गया है कि प्रभुपाद जी का जो लेटर था, जो उनका जो पत्र था, वो एक तरीके से एक यही हो गया था, मतलब प्रोफेसी, मतलब ये एक भविष्यवाणी जैसी बात हो गई थी। लेकिन वो जिनको जिनके लिए लिखा था, जिन वो समझ नहीं पाए। बाकी लोग समझ गए, लेकिन जिनके लिए लिखा था, वो उन्होंने समझ नहीं पाए। तो हमने देखा प्रभुपाद लीलामृत में कैसे प्रभुपाद जी ने गांधी जी को कितना बार अप्रोच किया। कई बार उनको बोला कि आप मेरे साथ डिस्कशन करने आ जाओ, 1 महीने के लिए रिटायर होके यहाँ पे बैठो, थोड़ा कुछ सीखो। बट प्रभुपाद जी नेवर, सॉरी, गांधी जी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया इस बात की तरफ। और जैसे उन्हें लिखा था कि तुम नहीं छोड़ोगे तो मारे जाओगे, एंड सेम थिंग हैपेंड, मैंने देखा। तो थैंक यू फॉर रीडिंग तमिल टू। तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और